اردو شعبہ اردو کے فرسٹ سیمسٹر کے عزیز شاگردوں، مغل یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے فرسٹ سیمسٹر فرسٹ سیمسٹر کے شاگردوں، حافظوں، لڑکیوں اور لڑکوں، آج تم سے بہت عرصے کے بعد مخاطب ہو رہا ہوں تم لوگوں سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ادھر سے وجوہات تھیں، باہر کے ہم لوگ سب لوگ ٹھیک ہیں، اچھے سے طبیعت بن گئی ہے کہ لیکچر دیا جائے۔ کچھ دنوں سے پریشانی تھی، کچھ انریسٹ ہو گیا تھا، کام کرتے کرتے تھوڑا سا ریسٹ لیا۔ باہر کیا آج ہم لوگ کا موضوع ہے سیمسٹر 1 کے سلیبس کا ناول کا پیپر، اور آخری ناول آنگن بچ گیا تھا قیصر مستور کا، جس پر مجھے باتیں کرنی تھیں۔ تو اردو ناول کی تاریخ میں قیصر مستور کے ناول آنگن کا کیا مقام ہے اور اس کے قدر و قیمت کا کیا تعین ہوا ہے، اس کے اسرار و رموز کیا ہے، اس کا پریزنٹیشن، اس کی پیشکش کیسی ہے، اس کا پریزنٹیشن کیسا ہے، اس کے موضوعات کیا ہے، پلاٹ کیا ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے چلنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ اردو ناول کی تاریخ ڈاکٹر نذیر احمد سے 1857 کے غزل کے بعد 1969 سے چلتی ہے یہ روایت، طبعۃ النصوص سے، بنیات النعت اور النصوص اور فصل المبتلا آزادی بیگم بن الوقت سے چلتی ہے۔ بنیات العروض، بنیات النعت، تو بنیات العروض پہلا ناول ہے جو اردو کا ناول ہے۔ بہر کے اب پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ کہنا ہے کہ ناول کی جو تاریخ 1857 کے غزل کے بعد مرتب ہوتی ہے، جو اب تک چلی آئی ہے، اس میں کئی نشیب و فراز آئے ہیں، اس کے کئی عہد بہد بنتے ہوئے نظر آئے ہیں، بہت سارے ادوار گزرے ہیں۔ کبھی تو 1857 کے غزل کے بعد کا اصلاحی ماحول تھا جس سے پروردہ ڈپٹی نذیر احمد تھے، ناولوں میں اصلاحی رنگ تھا۔ آگے چل کے زندگی کا الگ پلٹے تردناک تھا، شامل فصل ابداد میں پہنچا، انسانی زندگی کو آزاد و خود مختار کرتے ہوئے، آزاد و خود مختار بتاتے ہوئے انسانی زندگی کو جس فطری انداز میں آگے بڑھایا، اس کے مظاہر کو یہ بھی ایک خوبصورت بات تھی۔ تیسری اہم بات یہ کہ ناول جب ہماری حقیقت کی منزل پہ پہنچا تو وہاں ملاجہ جیسے ناول حادی رسوا کے موجود تھے، جس ناول نے بے پناہ ہماری حقیقت کو ایک ارتقا دیا، اس کو ایک بریک دیا، اس کو زبردست طریقے سے منزل مقصود تک پہنچایا۔ اس کے بعد تہذیبی ہماری حقیقت نگاری عام ہوئی کہ پریم چند آئے، جنہوں نے اس صنف کو بہت دور پہنچا دیا، عالم آفاق پر پہنچا دیا، ایک ایسی منزل پہنچا دیا پریم کے گودان اور ان کے دیگر ناولوں نے، جسے پتہ چلتا ہے کہ راشد الخیری بھی تھے جنہوں نے تاریخی ناول لکھے، اور بھی کچھ لوگ تھے تاریخی ناول لکھے تھے، لیکن جو ہماری حقیقت نگاری کا گہرا انداز اور گہری قدریں اس کی، اور اس کا جو اس کے گہرے عناصر تھے، وہ ہماری حقیقت نگاری کی روایت وہاں سے چلتی ہے، جو آگے چل کے تقریب ہند تک آتی ہے۔ اور تقریب ہند سے پہلے فریڈم اسٹرگل میں، تحریک آزادی، جہاد آزادی میں، فریڈم اسٹرگل میں جس طریقے سے اردو ناول نے اپنا رول پلے کیا تھا، وہی رول جو ہے اس کو آگے چل کے 47 کے بعد کے ناولوں نے پیش کیا ہے۔ لیکن 47 کے پہلے اور 47 کے بعد، یعنی آزادی، ہندوستان کی آزادی سے پہلے، ہندوستان کی آزادی 1947 کے بعد، اردو ناول کئی تجربوں سے گزرتا ہے، آلن فانن 10 سال کے اندر اردو ناول بہت سارے تجربات سے گزرتا ہے۔ تجربات کا نچوڑ یہ ہے کہ اس گودان کو جس مقام پہ لا کے پھر نے چھوڑ دیا تھا، اس کے بعد اس ناول کو اٹھا کر آگے چل کے بڑے بڑے ناولسٹ آئے تقسیم ہند کے زمانے میں، جیسے قطب الحیدر آئین، جنہوں نے اپنا ناول میرے شرف خان آگ کا دریا، اور میرے بھی شرف خان آگ کا دریا، اور ایک ناول بڑا اچھا ہے ماشاء اللہ، کیا میرے بھی شرف خان اور آگ کا دریا ایسے بڑے ناول لکھے شور کی راؤ کی تکنیک کے تحت، اور سے عبداللہ حسین نے لکھی تقسیم ہند غلبے کے بعد دوسری جنگ عظیم کے خاکے کے ساتھ، دوسری جنگ عظیم کا اثر، خاکے اور اس کی تباہ کاریاں جس سے سامنے آئیں، اور فسادات ہوئے جو تقسیم ہند کے بعد جو فسادات ہندوستان میں ہوئے، پاکستان میں ہوئے، جو بھی ہو،
लेकिन उससे पहले दूसरी जंग अजीम का हादसा बहुत बड़ा हादसा था जिससे पूरी दुनिया को हिला दिया था। जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर एटॉमिक बम गिराने के बाद, जर्मनी के एटॉमिक बम गिराने के बाद हिटलर की बीमारी से जो क्या तबाहियाँ आ सकती थी वो आई। इंसानी जिंदगी बिल्कुल चुनाव हो गई। जब तक चल रही थी अपनी जद्दोजहद से आगे चल रही थी, वो ज़िंदगी बिल्कुल पसे पुष्ट पड़ गई। उसमें सब कुछ था, पहले के दिन सभी कुछ था, स्ट्रगल था, जद्दोजहद थी, और साथ ही साथ उसमें मोहब्बत की कहानियाँ भी थी, कदरें भी थी कुछ अच्छी, तहजीबी शबाब भी था। उसकी वालामादगी उस वक्त उतनी नहीं आई थी जो जंग के बाद सामने आई। फिर 47 के फसादात के बाद 1947 के हिंदुस्तान की आज़ादी, अंग्रेज़ों की गुलामी से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, तक़सीम हिंद भी हो गई, हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग बन गया, हिंदुस्तान अकेले रह गया इधर। तो उससे बहुत सारे मामला उठे जिसमें इज्जत का दर्द न सहते हुए, न बर्दाश्त करते हुए बहुत सारे लोगों ने जो है अपने अपने इलाके में बर्बाद कर दिया। उसमें सब कुछ लोग थे, सारे लोग थे जिन्हें हिंदुस्तान से पाकिस्तान या पाकिस्तान से हिंदुस्तान जिनको को आना पड़ रहा था। वो गहरा तहजीबी टकराव, वो गहरा समाजी तारीखी टकराव, वो गहरा सियासी टकराव तहस कर देता है। सारे स्कूल उनकी फ़िज़ा को, माहौल को तहस कर देता है, तो उन्हें नाबूद कर देता है। उसके बाद जो नस्लें उदास होती हैं उसका नंबर आपको देखना है। एक लाइन से देखिए 1947 के बाद ठाकुर सिद्दीकी ग्रामीण खुदा की बस्ती देखिए, उसके बाद उदास से अब्दुल्ला हुसैन का देखिए, उससे पहले मेरे भी सनम खान देखिए, उससे बाद जस्ट बाद मेरा नाबिलाक का दरिया देखिए। तो ये बड़ी बात है कि नाबिलाक का दरिया तमाम कुछ के बाद जो गौदान के बड़े नाबिल थे, पंडित सरशार के नाबिल अब फसाने आज़ाद में थे, उतने बड़े कैनवास को लेकर कतल हैदर ने 3500 साल पुरानी तारीख को पेश कर दिया और माजी में जाकर सभी रिश्ता दिखाया। इंसान अदल से मोहब्बत का प्यासा है, कभी उसकी रूहानी मोहब्बत बढ़ जाती है, कभी उसकी क़ल्बी ज़िंदगी बढ़ जाती है, लेकिन ये मोहब्बत जो है बड़ी पैथेटिक है। इसे हर मोड़ पर अंजाम जिसका हुआ है वो इंतहाई मनफी हुआ है, इसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इंसान की असली मोहब्बत कभी बार बार नहीं होती, उसे कभी मंजिल वसाल नहीं मिलती, उसे दुनिया में छोड़ दिया जाता है अंजाम पर, वो अपने आप ख़त्म हो जाती है या अमर हो जाती है मरकर। ऐसी कहानी आंगन की भी है। आंगन नाबिल ख़वाजा मस्तूर का जो है उसी ज़माने में लिखा गया जिस ज़माने में खुदा की बस्ती, आग का दरिया, उदास नस्लें और खाक को खून मुस्लिम आज़ादी का शाम अबद लिखा हसन फारूकी ने, खाक को खून लिखा मुस्लिम आज़ादी ने, मनामन सागर ने और इंसान मरगिया लिखा, और भी एक दो नावल लिखे गए, रक्स इब्लीस लिखा एक साहब ने। सब अपनी जगह में दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह नावल आंगन एक केवल इस तरीके से एक आंगन मौजूद रह के नावल अपने तमाम दाखिली व खारजी मज़ाहिर को, अपने तमाम दाखिली व खारजी शूट्स को सामने ला के रख देती है। क्या तजुर्बात हो रहे हैं ज़िंदगी में, क्या कुछ दर्द कहा जा रहा है, कैसी कैसी परेशानियाँ हल हो गई हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस नावल की हीरोइन आलिया है वो एक सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट डिप्टी कलेक्टर की लड़की है, और वो एक अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है, उसका अपर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ है, लेकिन उस फैमिली के वो अकेले हैं। आलिया के फादर जो है वो वालिद जो है अकेले हैं, जो एक बड़े आदमी हैं, बाकी लोग जो है स्ट्रगल ही कर रहे हैं और मुतवस्सित तबके में मिडिल क्लास में ही जीते हैं। जैसे जमील हीरो है नावल का, उसके बाद उसके वालिद जो थे वो फ्रीडम स्ट्रगल में हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी कांग्रेस के साथ थे, और जमील मुस्लिम लीगी हो गया था जवान लड़का, तो उसके लिए फैसले भी वहाँ पर थे। उसी तरीके से आलिया के चचा थे जो क्या नाम है जमील आलिया का चचेरा भाई कज़न था, जो बुनियादी तौर पर जो है अपने वालिद से हमेशा से कश्मकश में की हैसियत में शिकार रहा और उनसे झगड़े करता रहा, बहसबहसी करता रहा। दोनों ने ज़िंदगी को तर्क कर दिया, एक दूसरे की ज़िंदगी को एक आंगन की चार दीवारी में महफूज होकर दिखा दिया कि बाहर के अफराद कैसे अंदरून घर में असरात को ख़त्म कर रहे हैं, सियासी मज़मूरात किस तरीके से तारीख़ी मज़मूरात को बदल देते हैं, सियासी हालात किस तरीके से तारीख़ तहज़ीब पर असरअंदाज होते हैं। इसका अंदाज़ा कोई करे, उसका बेहतरीन
नमूना नामिल आंगन है कि खारिज ज़िंदगी के मज़ाहिर को भी इस नामिल आंगन में जो है अंदर समेट लिया है इस मज़ाहिर ने। जंग अज़ीम के हौलनाकी का क़स्सा आलिया के लफ्ज़ों में यूँ है कि समझो कि एक पहाड़ टूट पड़ा, समझो जंग थी, जंग अज़ीम थी, जंग थी, महंगाई ने घर में झाड़ू फेर दी थी, महंगाई ने घर में उस घर में झाड़ू फेर दी थी जो घर मुतवस्सित तबके का था, मिडिल क्लास का था, और मजिस्ट्रेट साहब उस घर के एक फर्द थे। उन्होंने बताया कि उस टाइम ज़मीन के घर में जो है दिखाया कि वो जंग थी, वो युद्ध था, वो वार था, सेकेंड वर्ल्ड वार, जो जिसने जो है मतलब जिसके तहत महंगाई इतनी बढ़ी, दरपरस्ती का ऐसा दौर शुरू हुआ, ऐसी परेशानियां सामने आ गईं कि सब कुछ बिखर गया, पूरा निज़ाम मुंतशिर हो गया और महंगाई बढ़ गई, दरपरस्ती बढ़ गई, सरमायादारी आई, नया दरपरस्त माहौल आया। नई दरपरस्ती ने ज़्यादा से ज़्यादा कमाने वाले नौजवानों ने, मर्दों ने ज़्यादा कमाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए। ये वो हरबे थे जिसमें इंसान एक दूसरे के सीने पर आगे रख कर बढ़ने के ख्वाब देख रहा था कि कल हम इरादा कर रहा था कि हम फलां के सीने पर चढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, फलां के हक को मार के आगे बढ़ जाएंगे, हम सिर्फ ज़र इकट्ठा करेंगे, दौलत इकट्ठी करेंगे और सिर्फ अपने लिए रखेंगे, अपने ऐश व आराम की रखेंगे, अपनी ऐश तवी की रखेंगे, किसी को नहीं बांटेंगे। ये वो ज़माना था जिस ज़माने में पूरे पाकिस्तान का निज़ाम भी जो था वो सही था, नहीं दरपरस्ती का था। सब ज़्यादातर लोग अपने अखलाक व आम को भूल चुके थे। आलिया का किरदार बड़ा अच्छा है यहाँ पर। वो एक सेंसिटिव लड़की है, वो एक हसास लड़की है जो नावल की हीरोइन है, और जो मजिस्ट्रेट साहब की इकलौती बच्ची है, और वो अंदर ही अंदर सफदर से अपने मामूजात भाई से प्यार करती है। वो सफदर जो मजिस्ट्रेट साहब की बहन का लड़का था, मजिस्ट्रेट साहब की बहन का लड़का था सफदर, वो किस तरह से रिवोल्यूशनरी था उस ज़माने में, और इश्ताकी मूवमेंट की बात करता था, कम्युनिस्ट मूवमेंट की बात करता था, कम्युनिस्ट फ्रीडम की बात करता था, इश्ताकी आज़ादी की बात करता था। तो कितनी बहसों में शामिल रहा, कितने मुखालिफ सख्त में चलता रहा, लेकिन उसकी बहस सब्र क़नाअत से दूर, उसकी बहस इंसानी जोश और आहंग को, इंसानी तब्दीली और इनकलाब के ख्वाब ने जिस तरीके से सफदर की ज़िंदगी को बिल्कुल आला मकाम बना दिया था, वो आलिया की निगाहों में बड़ा आइडियलाइज था, बड़ा मॉडर्न था कि ऐसा ही मर्द होना चाहिए जो हर लड़की को उसके पूरे सब ख्यालात के साथ मिला दे, पूरे ख्वाबों की तकमील कर दे, पूरा कुछ सिखा दे, सब कुछ स्ट्रगल के साथ करना चाहती सफदर। आलिया चाहती कि सफदर जिस हालत में भी है उसी हालत में हमको आके ले जाएं और हम उसके साथ उसके स्ट्रगल में कदम कदम पर साथ देंगे। वो कितने ही दुख पे रहे, हम उसका दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सफदर तक़सीम हिंद के बाद हौलनाकी से हिंदुस्तान के बंटवारे की हौलनाकी से निकलने के लिए तब से जो है भाग कर पाकिस्तान चला जाता है, और यहाँ रह जाती है। एक ज़माना गुजर जाता है, कुछ ही सालों के बाद जब वो लौटता है तो तक़सीम हिंद के बाद उसके ख़यालात बदल जाते हैं पाकिस्तान जाकर, और वो कहता है कि मैं अब जो भी कमाऊँगा बड़ा आदमी बनकर दिखाऊँगा, मैं जो भी कमाऊँगा मैं अपने लिए कमाऊँगा, अपनी दुनिया के लिए कमाऊँगा, अपने इज्तबा के लिए रहूँगा, और दुनिया से तमाम तर दौलत इकट्ठा करूँगा, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तुम मेरे साथ चलो। तो आलिया बिल्कुल बिखर जाती है, उसे मौत ने घेर लिया। उसे ऐसा लगा कि जंग अज़ीम और हिंदुस्तान के बंटवारे ने इन दोनों चीज़ों को मिला कर सेकेंड वर्ल्ड वार, दूसरी जंग अज़ीम और तक़सीम हिंद आज़ादी का तक़सीम हिंद बंटवारे हिंदुस्तान का बंटवारा, उसने सब कुछ जो तहस नहस कर दिया। सब कुछ तहस नहस किस तरह किया, उसकी मिसाल सफदर है। सफदर नई दरपरस्ती में शामिल हो जाता है और उससे मादी खुशियाँ फराहम होती हैं। वो अपनी आइडियोलॉजी को भूल जाता है, अपने आदर्शों को, नज़रियात को भूल जाता है और एक अजीब तरीन ज़िंदगी गुजारता है। एक अजीब ज़िंदगी गुजरने पर खुद को मजबूर कर रहा है, और आलिया को भी सामने ला रहा है कि तुम यही ज़िंदगी अख्तियार करो। आलिया बिखर कर टूट जाती है, उसके ख्वाबों का महल चिकना आता है। क्या यही वो सफदर है जिसको मैं बहुत मानती थी, जिससे मैं बहुत अंदरूनी मोहब्बत करती थी? उसके आदर्शों, उसके ख्यालात, उसके नज़रियात को देखते हुए मैं उसकी कद्र करती थी, और सीने में एक खूब सी उठती थी कि मेरे इश्क एक ऐसे आदमी से है जो रेवोल्यूशनरी है, इनकलाबी नौजवान है, जो हर चीज़ को देख रहा है, एक अच्छा कम्युनिस्ट, सच्चा पक्का कॉमरेड और कम्युनिस्ट है। तो उससे मोहब्बत करती थी। इससे क्या मालूम था कि ये दुनिया का आम आदमी बन जाएगा,
आम आदमी बनने का जहाँ मामला जहाँ तक था, उसमें सफदर चाह रहा था कि हमने एक नए आम आदमी बनकर दिखाएं, जो उसके पास दुनिया की दौलत ही सबसे बड़ी दौलत है, इसके अलावा और कोई दूसरी कदर, कोई दूसरा माहौल नहीं है जो उससे बेहतर हो सकता हो। ये सब बातें थी। तो नहीं तो ख़वाजा मस्तूर ने एक आंगन में बैठकर जिस तरीके से आंगन की चारदीवारी के अंदर के असरात अंदर के माहौल पर, फिजा पे बैरूनी खारजी हालात के असरात दिखाए हैं। मुल्क क्या सोचकर जा रहा है, शहर किधर जा रहा है, मुल्क किधर जा रहा है, दुनिया किधर जा रही है, कौन कहाँ बंटवारा हुआ है, कैसे लोग उधर भाग रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, कैसे क्या हो रहा है, इन चीज़ों को आलिया जैसा कुछ व्यक्ति महसूस करती हैं। और उसके बावजूद उसके सीने में एक उम्मीद की किरण रहती है, कब जो सफदर मिलेगा तो मैं उसका साथ हमेशा के लिए अपने वालिद को छोड़ के उसका साथ हाथ थाम लूँगा, आगे बढ़ूँगे। जबकि वो जान रही है कि उसके चचा का वो क्या अंजाम हुआ। कांग्रेस में वो थे, जद्दोजहद में इंसान की जद्दोजहद, आज़ादी की जद्दोजहद आज़ादी फ्रीडम स्ट्रगल में वो पेश रहे कांग्रेस के साथ। और किस तरह से आखिर में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को हमेशा याद ताउस आते हैं कि नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू साहब के प्लेन पर मैंने जाके रखा था एक बोतल, गर्म पानी का बोतल, ताकि वो उससे महफूज रखे अंदर के। इससे बड़ी बात थी। उसके बावजूद जब वो गुजर गए, एक रिपोर्टर नहीं आया, कोई नहीं आया। हाँ, एक फर्क से कम्युनिटी दिया कि फराह साहब जो है कांग्रेस के पुराने मेंबर ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल के लोग गुजर गए दुनिया से, शख्स गुजर गया। और इतनी सी खबर होती है, सियासत में मिडिल क्लास का जाना बगैर किसी सरमाए बैकग्राउंड में, बगैर किसी सरमाए और हैसियत के बावजूद चला जाना घर को तबाह बर्बाद करता है। सियासत अच्छे अच्छों को उठा के पटक देती है, जिसकी बुनियाद मजबूत होती है वही टिकता है सियासत में। बड़े बड़े लोग टिक जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, वहाँ अप्रोच करते हैं। छोटा आदमी अपने शहर, अपने गांव में ही रह जाता है, उसको न ले जाने वाला कोई है, न उसकी वहाँ रसाई है दिल्ली तक। वो चीज घुट के रह जाता है, मर जाता है, कोई नाम लेवा नहीं होता है। अब मामूली लोग भी इक़्तिदार आने के लिए, नई कुर्सी ने बरसर इक़्तिदार आने के लिए, इक़्तिदार में हुकूमत में आने के लिए नए नए लोग आते हैं, पार्टी के अंदर चले जाते हैं, एकदम तब्दीलियाँ होती हैं, पार्टी बनती है, पार्टी लाइन से कोई किसी को कोई मदद नहीं कर रहा है। ये तो कहानी थी उस दौर की। ये कहानी बड़ी दर्दनाक है। इसमें खारजी मज़ाहिर जंग अज़ीम के भी आते हैं, इसमें खारजी मज़ाहिर हिंदुस्तान के फसादात के भी सामने आते हैं, उसके भी असरात पड़ते हैं। महंगाई की बात होती है, जो घर का बिहारा भरा था वहाँ महंगाई के लाले पड़ गए, महंगाई की वजह से लाले पड़ गए हैं, इसकी रोटियों के लाले पड़ रहे हैं, परेशान हाल है। घर में झाड़ू फिर दी थी, जंग थी, क्या दिन जंग थी, जिसने अच्छे बच्चे घर के हंसते हंसते घर के आंगन में झाड़ू फेर दी थी। यानी माशी हालत बिल्कुल खस्ता और तबाह हो बर्बाद हो चुकी थी। लोग चले गए, पाकिस्तान माइग्रेट किए। आलिया को मजबूरी पाकिस्तान हिजरत करनी पड़ी। पाकिस्तान में सफदर मिलता है तो उसको एक नया अंदाज मिलता है, जिससे उसको बहुत दुख होता हो। कहती कोई आदमी है जो मेरे आके कोई मेरे कतरा मेरे मुँह में अटकाए, मेरे गर्दन में, मेरे मुँह से उतार दे, हलक से नीचे उतार दे कतरा पानी। दिस शी वाज सपोज टू बी डेड। वो वहाँ ख़त्म हो जाती है, उसका सारा आइडियल सुना हो जाता है, शिकस्ता हो जाता है। उसको लगता है कि ज़िंदगी जो मैं जी रही थी, मैं जीत रही थी, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ हालात ने नाइंसाफ़ी कर दी। अब मैं जी के भी क्या करूँगी। ये तो इस कहानी का टच है। यहाँ ख़वाजा मस्तूर का क्राफ्ट बहुत उम्दा है। ये वो क्राफ्ट है जिसमें घरेलू छोटी छोटी बातें भी शामिल हैं, जुज़ियात हंसी भी शामिल है। हंसी मजाक, खेल मुहासा बहासा, बहस मुबाहस, सब कुछ थे। सारी ज़िंदगी का नक्शा था, खाना पीना साथ, एक लाख साथ था, सब कुछ था। लेकिन उसके बावजूद आगे चल के दिखाया जाता है कि खारजी मज़ाहिर कैसे यहाँ असरात हो रहे हैं। सियासत में किसी मिडिल क्लास का उतरना और उसी पर डिपेंड कर जाना कितना तबाहकुन और रिस्की होता है, कितना परेशानकुन और रिस्की होता है, इसका नक्शा खींच दिया है ख़वाजा मस्तूर ने। इसका नक्शा बड़ी उम्दगी से खींचा है। उस ज़िंदगी का खींचा है जो उदास नस्लों की ज़िंदगी है। नस्लें उदास हो गई हैं, उस उदासी का नक्शा खींचा है जहाँ कुछ नहीं, उदासी है, दर्दी दर्द है और कुछ नहीं है, दर्दी दर्द है और कुछ नहीं है। यहाँ पर अजीब गरीब बात ये है कि दर्दी दर्द और कुछ नहीं, और ऐसा लगता है कि ये दर्द उदास नस्लों का जो है जाएगा नहीं। ये दर्द सीने में समा गया, जागुज़ी हो गया है, इसकी रूह में उतर गया है, इसके हर तरीक़े में उतर गया है। सफदर हों, आलिया हों, जमील हों, उसके बाद जमील हों,
پھر اس کے 2-3 اور چھوٹے چھوٹے کزنس ہیں وہ ہوں، یہ سب زندگی کے بڑے کردار، ناول کے بڑے مرکزی کردار ہیں، لیکن ان کا انجام دکھایا گیا ہے، نہایت کے 2 لاکھ دکھایا گیا ہے، سپنوں کا محل ٹوٹ جاتا ہے، سارے آدرش نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ جنگ عظیم، دوسری جنگ عظیم سے سیکنڈ ورلڈ وار کا اثر کیا پڑا، ورلڈ وار کا اثر کیا پڑتا ہے انسانی زندگی پر، اس کا نقشہ دیکھ رہا ہے۔ تو آپ دیکھیے آ کے آنگن میں، قید مستور کے ناول آنگن میں، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے ہندوستانی تقسیم کا، ہندوستان کی تقسیم کا، بٹوالے کا کیا اثر پڑا انسانی زندگی کے گھر و آنگن پر کیا پڑا، اس کا نقشہ دیکھنا ہے تو آپ اردو ناول آنگن اٹھا کے دیکھ لیجیے اور اس کو سمجھ لیجیے کہ خدا کی بستی دیکھ لیجیے، اردو ناول کا آنگن دیکھ لیجیے اور سمجھ لیجیے کہ یہ بٹوارہ کس طرح کا ہوا، جہاں پر انسان کے سینے اور جذبات پر مطلب لوگ چڑھ کے آزادی حاصل کی، یہ ساری بٹوارے کو یہ کیا، پسند کیا، اور بٹوارے نے کس طریقے سے ایک دوسرے کو نیست و نابود کر دیا، کس سے خراب کیا۔ بٹوارہ ایک تہذیب کا بٹوارہ تھا، ایک کلچر کا، ایک عہد کا بٹوارہ تھا، ایک روایت کا بٹوارہ تھا، ایک محبت کا بٹوارہ تھا، ایک روحانی سفر کا بٹوارہ ہو گیا۔ ہر طریقے سے آدمی مہاجر ہو گیا اپنے آپ میں، کوئی بھی اوریجنل نہیں رہ گیا، تب مہاجر ہو گیا، پریشان ہو گئے لوگ۔ زندگی کی شرمناکی سے گزری ہے۔ ہجرت کا درد کیا درد ہوتا ہے، ہجرت کا درد کیا ہوتا ہے، اس کا نقشہ آپ کو دیکھنا ہے، ناول آنگن میں آ کے دیکھیے، جس میں آپ صرف 3 اور 4 کردار ملیں گے، آپ کو زیادہ بھیڑ چال نہیں ملے گی۔ ناول کی ہیروئن عالیہ، جس کی کہانی، جس کے محور سے، جس کے اشارے پہ پورا ناول بنا ہے، چھوٹے سے مدت کا ناول بنا ہے۔ اس کا صفدر اس کا کزن ہے، جو اس کا لور ہے، اس کا عاشق ہے، جس سے وہ پیار کرتی ہے، وہ ایک آئیڈیل کمیونسٹ ممبر ہے، کمیونسٹ پارٹی کا آدمی ہے، اور ایک جمیل ہے جو مسلم لیگی ہے، اس کے والد ہے جو پھر اس سگن میں انگریزوں کے ساتھ تھے، کانگریسی تھے، ان کا انجام بھیانک ہوتا ہے، اور جمیل مسلم لیگی بن کے سلوگن دیتے ہوئے پاکستان جاتا ہے اور وہاں کمانے کے جانے پر دھیان دیتا ہے، دولت اکٹھی کرنے پر دھیان دیتا ہے۔ یہ تہذیبی بٹوارہ جو تھا، یہ مادی بٹوارہ تھا، یہ سیاسی بٹوارہ تھا، یہ تاریخی بٹوارہ تھا، ہر اعتبار سے اخلاقی بٹوارہ تھا۔ اخلاق، تہذیب، تمدن سب بگڑ گیا، سب کچھ تباہ برباد ہو گیا، ساری قدریں پامال ہو گئیں، ساری اقدار فنا ہو گئی، ساری قدریں پامال ہو گئیں، تمام کو پامالی نصیب ہوئی، ہر کہیں پر پامالی نصیب ہوئی، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا دنیا میں، کیسے ہوا اور کیسے ہو گیا، کیا سارا کچھ۔ یہ تو جنگ عظیم کا خطرہ ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، ورلڈ وار کی یہ اثرات پڑتے ہیں انسانی زندگی پر، پوری عالم میں جو ہے ایک قسم ماری ہو گئی، کچھ سمجھ میں نہیں کیا ہو گیا، نہیں ہو گیا، آ گیا۔ جنگ نے بالکل نقشہ بگاڑ دیا دنیا کا۔ پوری جنگ جو ہوئی، یدھ جو ہوا، سیکنڈ ورلڈ وار جو ہوا، اس جنگ عظیم نے جو ہے پوری دنیا کا بڑی دھانے پر، تباہیوں کے دھانے پر کھڑا کیا، عجیب طریقے سے اس کو منزل دکھائی، ایسا دکھایا کہ جیسے اس سے زیادہ کہیں اور کوئی تباہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناول کا کرافٹ کیا ہوتا ہے، پلاٹ کسے کہتے ہیں، ناول کی ساخت کیا ہوتی ہے، ناول کا پلاٹ کیسے آگے بڑھتا ہے، ناول میں کرداروں کی سادگی کی کیا اہمیت ہوتی ہے، زبان و بیان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ کے حوالے سے جب ناول میں کوئی قصہ، پلاٹ، واقعات، معاجرہ سازی ہوتی ہے تو کس کا کیا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور اس بیک گراؤنڈ میں اس کے کردار اسی زبان بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں، اس بیک گراؤنڈ میں اس کے کردار کھپتے ہیں کہ نہیں کھپتے ہیں، کہیں ایسے تو نہیں لگ رہا کہ کنٹراڈکٹری بات ہے، ماحول جو کچھ ہے، بیک گراؤنڈ جو کچھ ہے، اس میں کہیں ایک فرق ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ ناول آنگن میں جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے مطابق ہی سب کچھ ہے، اور زبان و کردار بھی جو زبان بولتے ہیں وہ اپنے مطابق ہی بولتے ہیں۔ حیدر مستور نے اپنی طرف سے کوئی زبان نہیں جوڑی ہے، کرداروں کی زبان سے بات کی ہے، ان کے بیک گراؤنڈ، انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ میں جا کے بیان کی ہے، ان کی تعلیمی صلاحیت کے مطابق کی ہے۔ وہ جاہل ہے تو جاہل کی طرف سوچ ان کی ہے، وہ پڑھا لکھا ہے اس کی سوچ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے اس کی سوچ ایسی ہے، کوئی گھریلو آدمی ہے تو اس کی سوچ گھریلو آدمی کی طرح ہوتی ہے، کوئی باہر کی دنیا کا رسیہ ہے تو اس کو باہر کی دنیا کی طرح اس کی سوچ ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر گھر آنگن میں اندر رہتے ہوئے خارجی زندگی کے اثرات اس طرح کسی ناول میں نہیں پڑھ سکے جس کی بین مثال ناول آنگن ہے۔ ورنہ شام اودھ بھی تھا احسن فاروقی کا ایک ایسا ناول جس نے اودھ کے حوالے سے لکھنؤ کی زندگی کو دکھائی، بس ایک چاردواری کے اندر دکھا دی، اسی میں سب کچھ جڑا ہوا دکھایا اور کچھ نہیں دکھانے کی اس کی ہمت تھی، اور اس کے پاس احسن فاروقی کے پاس اتنا دماغ تھا، یہ دماغ تھا ایک فنکارانہ، باکمالی کا دماغ تھا، اور وہ باکمالی جو تھی ان کے اندر تھی، حیدر مستور میں تھی، جنہوں نے پل پل زندگی کو جو ہے دیکھا آگے بڑھتے ہوئے۔ تو میرا یہ کہنا مختصراً بچوں
कि नाविल आंगन अपने माजरे, अपने प्लॉट के साथ साथ अपनी किरदार निगारी के साथ साथ अपनी ज़बान, अपने बयान के लिए मशहूर हो सकता है। नाविल आंगन जो है अपने प्लॉट के अतबार से ज़बानी अहद क्या रखता है? ज़बानी अहद फ्रीडम स्ट्रगल दिखाया गया और 47 तक, 48 के बाद उसका नक्शा खींचा गया, वहाँ तक खींचा गया, 48 तक नक्शा खींचा गया। और इसकी शुरुआत होती है, समझिए कि एक तरह से 1920-25 से शुरुआत होती है, 25 से शुरुआत होती है। इतनी जल्द ये तबाहियाँ आईं, इतनी जल्द स्ट्रगल, तकवीर स्ट्रगल है, उसमें जितने सारे हादसा, सियासी हादसा हुए हैं, जितने सारे तहजीबी हादसा हुए हैं, जितने सकाफती हादसा हुए हैं, सबका नक्शा खींच दिया है यहाँ पर, सबका नक्शा खींच दिया है यहाँ पर। ये बड़ी बात है। ज़ाकल्लाह, हम फिर बात करेंगे वो दूसरे मौजू पे अगले क्लास में। आज आप इतना ही जान लीजिए और समझ लीजिए कि नाविल आंगन जो था वो बुनियादी तौर पर एक बड़ा तजुर्बा था। एक छोटे से आंगन में इतने सारे, एक पूरी दुनिया को समेट लेने का जो मंजर है, दुनिया के ख़ास लोगों का समेट जो मंजर है, दुनिया के हवाले से नुमाइंदा लोगों का जो मंजर है, वो आप देख सकते हैं। एक आंगन में यहाँ सब कुछ पेश किया गया, जबकि शाम अवध में कुछ नहीं किया गया था। यहाँ तक कि ज़िंदगियाँ महसूर हो गई, खारजी ज़िंदगी दाखिली ज़िंदगी में दाखिल होकर ख़त्म कर दिया उस दाखिली ज़िंदगी को। दाखिली ज़िंदगी खारजी से टकरा कर ख़त्म हो गई, फना हो गई। अजीब व गरीब एहसन फारूकी का नावल शाम अवध जो है दाखिले की और दाखिल और खारिज की तादाद से भर गया है। उसमें दाखिली ज़िंदगी और खारजी ज़िंदगी दोनों के अवामिल में बहुत फ़र्क हो जाता है, अजीब व गरीब हो जाता है, जबकि दोनों को यकजा होना चाहिए, सामने आना चाहिए। तो दाखिली ज़िंदगी खारजी हवालात के दखल से और खारजी हालात दाखिली हवालात के दाखिली हवाले से किस तरह से मजरू होती है एक दूसरे से, इसका अंदाज़ा आपको लग सकेगा तो वहाँ लगता है। लेकिन देखना चाहिए कि शाम अवध के अलावा के बगैर अगर देखा जाए तो क़ैज़ मस्तूर के यहाँ तक कोई कंट्राडिक्शन, फ़न में ऐसा कोई परेशानी नहीं, फ़न में ऐसी कोई परेशानी नहीं। उसका क्राफ्ट बहुत उम्दा है, उसकी क्राफ्ट में बेपनाह रग़बत है, उसकी क्राफ्ट में बहुत उम्दगी है। उसका क्राफ्ट कहीं पर ढीला नहीं पड़ा है, उसने सब कुछ जोड़ दिया है, सब कुछ किरदार की गिरदोपेश उभरता है, सारा कुछ। सब आलिया का किरदार जहाँ जहाँ जाता है उसके साथ नाविल का प्लॉट वहाँ तक आगे आगे बढ़ता है। आलिया ही किरदार मेन हीरोइन भी है, आलिया ही के साथ पूरी पूरा नाविल घूमता फिरता है और अंजाम पर भी आलिया ही होती है, वो ख़त्म हो जाती है कहानी। ये तो कहानी का माहौल है। इस कामयाब तबूदस्ती से नावल लिखने के लिए क़ैज़ मस्तूर आज भी उर्दू अदब में अपना मुकाम रखती हैं और इस नावल की गहराई तक पहुँचने में इंसान को बहुत देर होगी। जहाँ तक बयान, कहानी का इर्तिक़ा, कहानी के आगे बढ़ने का सिलसिला, प्लॉट, उसकी ताज़ाकारी, ये सब कहीं कुछ नहीं मिलता है। वाक़यात जो है छोटे बड़े तमाम फ्लैट किरदार हैं, एक गहरे किरदार है, कहीं पर राउंड फिगर है, राउंड कैरेक्टर है, कहीं पर फ्लैट कैरेक्टर्स हैं, कहीं पे बयानिया जो है बिल्कुल सादा और रवा दवा है, कहीं पर बयानिया थोड़ा सारती हो गया है, पेचीदा हो गया है। लेकिन हर पेचीदगी सारती, पेचीदगी और हर किस्म की रास्तबाजी, साफ़ सुथरे तरीके से दुनिया को दिखाने का अमल, ये सब कुछ जो है वहाँ उस नावल की खूबियाँ खूबसूरत हैं, जिसको हम ज़िंदगी भर भुला नहीं सकते। उर्दू नावल आज़ादी के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहला दूसरा बड़ा नावल, आग का दरिया के बाद दूसरा बड़ा नावल है जो इतनी बड़ी हैसियत रखता है, बुलंदवाला हैसियत रखता है। उस नावल तक पहुँचने के लिए दूसरों को ख्वाब देखने पड़ेंगे। तो आज तक तो ऐसा नावल आंगन के ऐसा नावल नहीं लिखा जा सका जिसमें इतने सारे महान हो, जाता हुए लिख गए और मुतवस्सित तबके की पूरी ज़िंदगी गुजार दी गई। एक आम हिंदुस्तानी मुसलमान, मुतवस्सित मुसलमान, मिडिल क्लास मुसलमान के घर में क्या हो सकता है? अपर मिडिल में भी हो, कह लीजिए उसको, मिडिल में भी ले लीजिए, लोअर मिडिल क्लास पे नहीं, अपर मिडिल और मिडिल के ख़ानदानों में क्या हो सकता था, इसके नज़ारे, इसके मौजूदात आपको यहाँ मिलते हैं। ठीक है, फिर बातें होंगी।